Hello students, I am Ashok Kumar. I am going to teach you the second topic, the sound of music. It is from the book Beehive of a Standard 9th of Complementary Book. It is part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. It is a biographical piece of Evelyn Glennie. She lost her power of hearing in her childhood. She achieved success and recognition through determination, hard work, and courage. The characters of this story are Evelyn Glennie. She is a deaf teenager from a Scottish farm. She is a famous musician. She speaks Scottish, French, and Japanese. Second character is Isabel Glennie. She is the mother of Evelyn Glennie. Third character is Ron Forbes. He is percussionist of Evelyn's school. Fourth character is James Blades. He is the master percussionist of Royal Society London. And fifth character is Anne Richlin. She is associated with the Beethoven Fund for Deaf Children. A story is about Evelyn Glennie, who lost her listening capacity to sound but hearing it. Listening and hearing, there is a difference between listening and hearing. Listening means when we listen anything, when we feel anything attentively, but hearing, it is a sound that comes to our ears all of a sudden. Before you read this, the point is God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. यहाँ पर है कि गॉड एवलाइन ग्लेनी का हियरिंग तो ले लिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दिया एवलाइन ग्लेनी को, दैट वी हियर एंड शी फील्स, जिसको कि हम लोग सुनते हैं और उस चीज को वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोग से बहुत ज्यादा. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और यही कारण था कि एवलाइन ग्लेनी जो थी वो बहुत ही सुंदर तरीके से किसी म्यूजिक को एक्सप्रेस करती थी. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी. अब ये जो अकाउंट है, ये जो स्टोरी है, एक डिसेबल्ड पर्सन के बारे में है. दैट she made her life a success story, and she has made her life a success story. The story is starting from here. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Rush hour crowds jostle. Rush hour का मतलब कि people are in large number. जॉसल का मतलब होता है पुश रफली. भीड़ में क्या होता है, लोग एक दूसरे को बहुत ही रफली पुश करते हैं. फॉर टेकिंग देयर पोजीशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited. She has felt the vibration of the approaching train. Slight means
स्मॉल एंड थिन, एक लड़की, लुकिंग यंगर, बहुत ही यंगर दिख रही थी, देन हर 17 ईयर्स, वॉज नर्वस, वो थोड़ा घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, फिर भी बहुत ही एक्साइटेड थी, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, शी वॉज फीलिंग वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन के आने की। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। अब वो लड़की, स्कॉटिश का मतलब है कि वो लड़की स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। अब वहाँ से वो लंदन के लिए जा रही थी, लंदन में उसको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला हुआ था, वहाँ उसको जाना था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डिफ। लेकिन बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब है कि अ पर्सन who wants to be a musician and that person who is disabled faced a bigger challenge, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, प्रॉब्लम था, than the most, she was profoundly deaf, वो किसी चीज़ को सुन नहीं पाती थी, profoundly का मतलब deaf, वो बहुत ही बहरी थी, नहीं सुन पाती थी। एब्लाइन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल, और ऐसा नहीं था कि एब्लाइन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग है ये अचानक हुआ था, वो ग्रेजुअली हुआ था, स्टेप बाय स्टेप हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, और उसकी माँ ने ऐसा नोटिस की थी कि कुछ गलत है। when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano, और उस समय जब वो 8 साल की थी एवलाइन, और वो इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने का, उसका नंबर आना था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, और ऐसा हुआ कि एवलाइन ग्लेनी का नाम कॉल किया गया, लेकिन वो अपने स्थान से नहीं हिली। I suddenly realized she hadn't heard, और मैंने ऐसा महसूस किया कि वो इस चीज़ को नहीं सुन पाई। ये उसकी मदर से इसाबेल ग्लेनी, ये उसकी माँ का स्टेटमेंट है। For quite a while एवलाइन managed to conceal her growing deafness। एवलाइन जो है कॉन्सील का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, और उसका जो डिफनेस बढ़ रहा था, इस चीज़ को वो हाइड किए हुई थी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर head mistress urged her parents to take her to a specialist। उस समय जब वो 11 ईयर्स की थी, उसका मार्क्स खराब आया था। डिटेरियोरेटेड का मतलब है वर्सेंट, डिटेरियोरेटेड का मतलब वर्सेंट, एंड हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो प्रिंसिपल थी। अर्ज्ड का मतलब यहाँ पे है रिक्वेस्टेड। urged her parents to take her to a specialist। स्पेशलिस्ट मीन्स डॉक्टर। उसको रिक्वेस्ट की थी कि आप एवलाइन ग्लेनी को डॉक्टर के यहाँ ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और इस समय ये फाइंड आउट हुआ दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, उसका जो सुनने की क्षमता थी वो बहुत ही
ख़राब हो गई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसका ग्रेजुअल नर्व जो है वो डैमेज हो चुका था। देवर एडवाइज्ड, सलाह दिया गया था उन लोगों को, दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और ऐसा सलाह दिया गया था कि उसको जो है कुछ हियरिंग एड्स दिया जाए और उसको जो है डिफ स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलाइन। लेकिन इस चीज़ को सुनने के बाद एवेलाइन को हर चीज़ ब्लैक दिखने लगा, मतलब शॉक्ड हो गई। ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ था एवेलाइन के लिए। बट एवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, यहाँ पे ये बताता है कि एवेलाइन का डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जब ये सजेशन दिया गया, ये सुझाव दिया गया उसके पेरेंट्स को कि एवेलाइन को जो है डिफ स्कूल में डाला जाए, शी वॉज डिटरमाइंड दैट शी वोंट गो इन दैट स्कूल, शी वोंट गो एबनॉर्मल स्कूल, बट एवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उसका डिटर्मिनेशन था नॉर्मल लाइफ जीने का। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू का मतलब यहाँ पे होता है फॉलो। वो म्यूजिक को छोड़ना नहीं चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसको एक लड़की जाइलोफोन प्लेइंग करते नजर आती है, वो निर्णय ले लेती है, वो चाहती थी कि वो भी जाइलोफोन को प्ले करे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे मतलब अधिकांशतः टीचर उसको डिस्करेज कर रहे थे। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट था रॉन फॉब्स, उसने उसके पोटेंशियल को, उसके ताकत को पहचान गया था। He began by tuning two large drums to different notes. Doesn't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Eveline. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. And she was feeling higher drum from the west up, मतलब west up का मतलब है कमर से ऊपर, and lower one from the west down, कमर से नीचे वो लोअर म्यूजिक उसको सुनाई दे रहा था। Forbes repeated the exercise and soon Eveline discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और ऐसा डिस्कवर किया गया कि वो certain notes जो है वो different parts of the body फील करती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work। और इस तरह से उसका sheer determination, strong determination और hard work के द्वारा वो जो है म्यूजिक को अचीव करना चाहती थी। Rest part of this chapter will be sent in the next video. Thank you so much.